So class, this is the new chapter which we are going to do, and it's about segment reporting. Okay. Most of the concepts in this chapter are what we have already studied before, but we were studying those in scattered places. Now we are putting all these things together. This chapter is about segment reporting. Segments. You understand what are segments? याद है किसी को? Segments की बातें हम लोगों ने की थी बिल्कुल स्टार्ट में when we started the basic course. जब हम लोगों ने managerial accounting start किया था, we talked about segments and whole organizations. Do you remember segments, departments? Yes sir. And whole organizations. ठीक है? Segment. These are those parts of organization. Whereas when we talk about the whole organization, then it considers the organization as a whole. कि पूरा क्या है? अब अगर मैं सेगमेंट बनाना चाहूँ आगे आप वी विल स्टडी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे क्या है. लेकिन अगर मैं सेगमेंट बनाना चाहूँ इस क्लास के तो मैं कह सकता हूँ कि गर्ल्स एंड बॉयज सेगमेंट्स. मैं कह सकता हूँ कि 4 CGPA होल्डर्स 3 to 3.5 या 3.9 इस तरह करके भी सेगमेंट्स बन सकते हैं. So these are different segments. Okay. Now this is about segment reporting. कि how would we report segment? Most probably you would have studied something like aggregates. ये पढ़ा है? Yes sir. Yes, sir. या consolidating. Consolidations पढ़ी? Consolidation नहीं पढ़ी? Sure. Consolidation नहीं पढ़ी? Financial reporting अब तक नहीं पढ़ी financial reporting? No sir. Okay, so over there you will study about aggregations or consolidation. तो आपको ये और भी ज़्यादा clear हो जाएगा कि segmentation और aggregation different. हाँ. Unconsolidated किस तरह होंगी और consolidation किस तरह होंगी. तो वो आपको help करता है इसको समझने में या ये आपको help करेगा उसको समझने में. So let's start with this chapter. Now the first thing is about decentralization. Remember decentralization? Decentralization याद है सबको? क्या होती थी? डिसीजन मेकिंग में लोअर जो वो थी हायरार्कीज में जो तो लोअर लेवल्स के में तो हम अथॉरिटी वी गिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल. ठीक सही है. डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? ये कैसी अच्छी चीज है. व्हेन आई गिव अथॉरिटी टू फारूक लेट्स से टू अरेंज क्लासेस या टू डिसाइड ऑन असाइनमेंट्स, तो देन आई विल कंसंट्रेट ऑन माय मेन वर्क. मैं अपना काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर लूंगा. वो जो छोटे छोटे काम थे वो मैंने उसको हवाले कर दिए. उसको फारूक कह दिए ये काम किया करो, हमजा से कह दिए ये काम किया करो, उसामा से कह दिए ये काम किया करो. So when authority is delegated at lower levels, the top level has enough time to concentrate on strategy. उनका काम strategy बनाना है, उनके पास टाइम बहुत है, वो strategy बना सकते हैं अच्छी तरीके से. So this is the first advantage. Now when we give decision making authority to lower level managers, they become experienced in decision making. अब वो decisions लेते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि वो experience होते जाएगा उनका. इसका मतलब ये है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आया तो वो हर बात के लिए they won't go to upper management या top level management for decisions. They can take own decisions. So lower level managers gain experience in decision making. उनके पास experience आ जाता है कि decision making किस तरीके से करनी है. जब when you make a decision and when you are given an authority कि you can decide, then it gives you satisfaction. यार मुझे तो एक काम मिल गया बहुत जो कि top level करता था मैं कर रहा हूँ. ठीक है. So it gives you job satisfaction. You are satisfied with your job, you perform well. Lower level decisions are decisions which are made by lower level managers. They are based on correct information. Why? Because they are the ones who come into contact with customers. फारूक come into contact with students. मेरा तो कांटेक्ट टाइम आपके साथ बहुत कम है, फारूक का ज्यादा है. फारूक मुझे कहता नहीं सर इस दिन क्लास नहीं रखते, लड़के नहीं मानेंगे या लड़कों की क्लास है वो थक जाएंगे ब्ला ब्ला ब्ला. So he knows better about the students. That's how lower level managers would know better about customers. उनको ज्यादा पता है क्योंकि वो उनका रोज का काम है कस्टमर के साथ डीलिंग करना. मेरा तो नहीं है, मैं तो टॉप लेवल में बैठा हूँ. कस्टमर तो मुझ तक आता ही नहीं है. मुझसे तो बहुत कम कंप्लेंट आएगी जो कि बहुत सीरियस किस्म की नेचर की. So lower level decisions often based on better information, and lower level manager can respond quickly to customers. Why? Because he comes into interaction with customers. फारूक जल्दी जल्दी आपका मसला सॉल्व कर देगा. आप मुझे मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, मैं चेक करूंगा रात को, फिर रिप्लाई करूंगा. फारूक किसी वक्त आपका मसला हल कर सकता है.
आप कहें फारूक ये काम हो गया है, क्लास नहीं ले सका, सर को बता देना, फारूक कहेगा ठीक है मैं कह दूंगा इसका उंगली टूट गई थी, ठीक है, तो सर कर देगा कुछ ना कुछ। सो दैट्स हाउ lower level managers can respond quickly to customers. Got this idea? Decentralization, the benefits there. Yes. Now, just like it has benefits, it has some drawbacks. ठीक है, इसके कुछ मसले भी, disadvantages. For example, there can be lack of coordination between low-level managers. फारूक को मैंने एक चीज असाइन कर दी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एक शमशेर को असाइन कर दी, एक उसामा को कर दी। अब ये तीनों आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक डिसीजन ले रहा है, एक दूसरा ले रहा है, एक तीसरा ले रहा है। अगर ये सब डिसीजन मैं लेता टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसको पता होता कि क्या डिसीजन करना है, क्योंकि सारी चीजें मेरे सामने हैं, मेरे सामने 3 डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स हैं, मैं 3 डिफरेंट किस्म के डिसीजन जो लूंगा, दे ऑल विल बी कोऑर्डिनेटेड, वो इन लाइन होंगे सारे। लेकिन अगर अलग अलग बंदे वो डिसीजन ले रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि शायद कोऑर्डिनेशन लैक हो जाए। सो देयर कैन बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑटोनमस मैनेजर्स। नाउ व्हेन लोअर लेवल managers make decisions, they are actually looking at things from their perspectives. Top level वाला जो होगा वो अपने perspective से देख रहा है, उसके सामने बड़ी पिक्चर है, क्योंकि वो सब ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है। लेकिन जो लो लेवल पे है, he is only looking at that particular department or segment, वो तो बाकियों को नहीं देख रहा। तो वो जो डिसीजन लेगा वो उसके लिए होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देख रहा है और उसके लिए अच्छा डिसीजन ले रहा है, तो उसके लिए तो शायद अच्छा डिसीजन ले रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। सो लोअर लेवल मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव्स मे नॉट बी दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट इसके दरमियान आ जाए। वी नो दैट ऑल द इनोवेटिव आइडियाज कम्स फ्रॉम टॉप लेवल, वहां से सारे आइडियाज कम्युनिकेट होते हैं टू थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल पे हम दे दें और वो सब डिसाइड कर रहे हो, तो ये आइडियाज जो कम्युनिकेट होते हैं, इसकी कम्युनिकेशन इज नॉट दैट स्ट्रांग, वो अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा सा मसला आएगा टू स्प्रेड इनोवेटिव आइडियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी क्लास क्लियर? Yes, sir. Clear? Yes. Okay. Now let's talk about centers. We have already talked about cost center somewhere in the previous course. इसके बाद cost center क्या चीज थी? Cost का center. Cost का center. And in the same way, we have a profit center and we have an investment center. But the idea is कि cost का एक center होता था, कुछ याद है? जब हम लोग cost drivers पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने in particular POHR पढ़ा था, so we talked about cost centers. कुछ याद आ रहा है? Responsibility accounting याद है? Responsibility accounting नहीं याद? Okay. चल मैं आपको याद दूंगा। Cost center. Now we have 3 different types of centers. We have a cost center, we have a profit center, and we have investment center. They are actually responsibility centers. तो ये किसी न किसी चीज के लिए responsible है, ठीक है? ये किसी न किसी चीज के लिए responsible है। Cost, profit, and investment centers are all known as responsibility centers. ये responsibility centers हैं। यहीं से responsibility accounting का term derive होता है कि responsibility accounting क्या है। Now when we talk about a cost center, तो अगर एक सेगमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है, एंड ओवर देयर द मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर कॉस्ट, मैनेजर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब दैट डिपार्टमेंट और दैट सेगमेंट इज एक्चुअली अ कॉस्ट सेंटर। बट रिमेंबर, इन अ कॉस्ट सेंटर मैनेजर विल हैव कंट्रोल ओनली ओवर द कॉस्ट, नॉट ऑन प्रॉफिट्स, नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन दो का कंट्रोल नहीं है उसके पास सिर्फ कॉस्ट का कंट्रोल है। इसका मतलब यह है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है कि कॉस्ट ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, इसको कंट्रोल कर सकता है। गॉट द आइडिया? कॉस्ट सेंटर। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ कॉस्ट सेंटर? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स टॉक अबाउट IMS। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट मैनेजर। हाँ, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट मैनेजर, वो कॉस्ट सेंटर, वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। वो देख सकता है कि कॉस्ट कितनी इनकम हो रही है, कौन कौन सा चीजें परचेज करनी है, कितनी कितनी परचेज करनी है। कैन दैट मैनेजर कंट्रोल रेवेन्यू? उसका काम प्रोक्योरमेंट से है, रॉ मटेरियल का, बस, और कोई काम नहीं है उसका। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल, वो इसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉस्ट सेंटर। उसका जो डिपार्टमेंट है, वो जो सेगमेंट है, वो कॉस्ट सेंटर है, लेकिन वो रेवेन्यू सेंटर भी नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट सेंटर भी नहीं। जी फर सर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, वो जो रिसर्च करते हाँ, हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो भी एक कॉस्ट सेंटर, वो सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वहां का जो मैनेजर होगा वो डिसाइड कर सकता है कि कितनी रिसर्च करनी है, कितनी एक्सटेंसिव करना है, कितना पैसे लगाने हैं, ये कंट्रोल कर सकता है। रेवेन्यू ना तो वो जनरेट कर रहा है, ना वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो कॉस्ट सेंटर इज क्लियर क्लास। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉफिट सेंटर। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? Sales minus cost. Sales minus cost. इसका मतलब if you are a profit center, then that means you are a manager of a center which can control profit. In other words, it can control Both sales and cost. both sales and cost. और sales को let's call it as revenues. ठीक है, sales या revenue ये भी कंट्रोल कर रहा है और cost को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक, got the idea? Got the idea class? Yes, sir. For example, what can be an example of a profit center? नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर सेगमेंट पता है। अपर मैनेजमेंट तो है, लेकिन अपर मैनेजमेंट का कौन सा लेवल और किस डिपार्टमेंट? अकाउंट सेक्शन। इब्राहिम, व्हाट इज एन अकाउंट सेक्शन एक्चुअली डूइंग? बताएं। रिकॉर्डिंग। तो अगर वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो चले कॉस्ट को शायद वो कंट्रोल कर ले रहा, उसके पास 5-6 अकाउंटेंट है, तो वो कहे चलो एक अकाउंट में घटाओ, कॉस्ट कम हो जाए यार, लाइट बंद कर दो, कम हो जाए कॉस्ट। ये कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है ना थोड़ा बहुत। बेंच थोड़े लेकर आओ, स्टेशनरी कम लेकर आओ, सॉफ्टवेयर पैरेंट इस्तेमाल करो यार, छोड़ो यार, कौन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करे। सो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल कॉस्ट। लेकिन क्या वो सेल्स को कंट्रोल कर सकता है? रेवेन्यू, उसका काम तो रिकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देगा बस, उसका तो ये काम। बजट बना के दे देगा आपको, सीजीएस की स्टेटमेंट बना के दे देगा, जो स्टेटमेंट आप उसको कहेंगे वो बना के देगा बस, और उसका कोई काम नहीं। Marketing या manufacturing? मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी चीज? एक चीज है ना, Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या होता है? टू मैन्युफैक्चर, Production. प्रोडक्शन। तो अगर प्रोडक्शन है तो क्या वो सेल्स को कंट्रोल कर सकता है? Yes. प्रोडक्शन वाला सेल्स को कैसे कंट्रोल करेगा? राइट, प्रोडक्शन वाले का काम सिर्फ प्रोडक्शन से, उसको ऑर्डर आता है इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, वो उसके मुताबिक चीजों को मंगवाएगा, लेबर फोर्स को वो करेगा, रखेगा, वो इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है। इसमें मटेरियल को कंट्रोल कर लेगा, लेबर की सप्लाई को कंट्रोल करेगा, एफओएच को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर सेल्स को क्या चीज कंट्रोल कर रही है, या कौन सा बंदा या कौन सा डिपार्टमेंट? Marketing. मार्केटिंग। Administration. Selling and marketing. फाइनेंस। सीईओ तो फिर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना। देखिए बेसिकली सीईओ तो हम इस थर्ड स्टेप पे जाएंगे व्हिच इज इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो सीईओ तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सीईओ कॉस्ट भी कंट्रोल कर रहा होगा, रेवेन्यू भी कंट्रोल कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट के फंड्स को भी कंट्रोल कर रहा है। आईएमएस की बात करें, किसकी बात करें? किसी अच्छा किसी भी कंपनी की बात करते हैं, जिस तरह क्या कोई स्टोर की बात करते हैं, चलिए लेट्स टॉक अबाउट अ स्टोर। तो जो स्टोर का मैनेजर है, स्टोर का मैनेजर वो दोनों चीजें कंट्रोल कर रहा है, कॉस्ट भी, रेवेन्यू यानी प्रॉफिट को कंट्रोल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला खाली कॉस्ट को ही कंट्रोल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स को तो कंट्रोल नहीं कर रहा होता। जो इस डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर होगा ना, देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट, यहां पे जो मैनेजर बैठा होता है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग को भी कंट्रोल कर रहा है, से कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैनेजर ऑपरेशंस वो, लेकिन वो फिर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, रेवेन्यू को भी कंट्रोल कर रहा है। और मैनेजर ऑपरेशन के पास क्या ये अथॉरिटी है कि वो कहे कि यार सेल्स ज्यादा करनी है, उसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, तो एक मशीन भी खरीदो, इन्वेस्टमेंट की उसके पास है। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या अथॉरिटी है, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर। So investment center is a segment whose manager has control over
कॉस्ट, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, तीनों चीजें कंट्रोल कर सकता है। और ये नॉर्मली वो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। फिर फाइनेंशियल सीएफओ नहीं कंट्रोल करता है इब्राहिम, सीएफओ का काम ये नहीं होगा। सीएफओ का काम सीएफओ जो है वो आपकी कॉस्ट देखेगा, कॉस्ट के हिसाब से वो प्राइसिंग करेगा। जो बंदा प्राइसिंग कर रहा है वो फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड को भी कंट्रोल कर रहा है। प्राइसिंग नहीं, सीएफओ प्राइसिंग कर रहा है। सर ये सर हाँ बिल्कुल ने बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो सब कुछ कॉस्ट हर चीज को देख के किया। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो नॉर्मली सब कुछ को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है। लेकिन सीएफओ के पास थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर हम इसके ऊपर चले जाएं। लेकिन सीएफओ के अगर हम हायरार्की देखें ना, मैं आपको मटेरियल रेट दे दूंगा उसका। ट्रेजरर होता है, ठीक है, और एक कंट्रोलर होता है। उसके पास बेसिकली ये लोग होते हैं, ये काम कर रहे हैं। इसमें से एक बंदा जो है वो रिकॉर्डिंग्स कर रहा है और एक बंदा जो है वो बजटिंग कर रहा है। ये लोग ये जो है इन्वेस्टमेंट फंड्स ने ये कॉस्ट को डिसाइड कर रहा होगा या कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। रेवेन्यू को ये भी नहीं कंट्रोल कर रहे। रेवेन्यू को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है ये वाला, क्योंकि ये सेल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ये सेल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ये रेवेन्यू को कंट्रोल कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ज्यादातर इसी के पास होते हैं कि हमें मशीन लेनी चाहिए। हाँ, अब गौर से सुनिए, ये होता है कि ये जब रिकमेंडेशन देता है तो उसकी अप्रूवल या उसकी फीजिबिलिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कम्स फ्रॉम सीएफओ। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि नहीं। मतलब मैं आपसे बोलूं कि टीचर्स की पे डबल करो, टीचर्स को 10% अलाउंस दे, तो इसका मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं कॉस्ट कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन ये मेरा डिसीजन जाता है सीएफओ के पास और वो डिसाइड करता है कि क्या मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अब इसको देखिए और इसमें अब आप डिसाइड करें कि कौन काम कर रहा है। अब देखिए, अब आपको ज्यादा चला चलेगा। ये कौन है? bottling plant manager. So I have an organization which is called our Superior Foods Corporation, and there's a corporate headquarter, and we have a president and we have a CEO. अब obviously बात है president CEO, they are controlling each and everything. तो शायद ये जो है most of the investment centers, ठीक है? आ जाए नीचे आ जाए। Operations Vice President, Financial Chief, okay. Finance का Chief Financial Officer जो CFO है, उसके बाद legal का है, उसके बाद personnel का है। ये cost को तो control कर रहे हैं अपने respective departments की। लेकिन ये सेल्स को तो कंट्रोल नहीं कर रहे ना। सेल्स तो देखिए ऑपरेशंस का काम तो इसका है। इसके पास मेरे पास जो लोग हैं, लेट्स से मैं इज ऑपरेशंस वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे पास जो लोग हैं उसमें मैं चिप्स बनाता हूं, उसका मैनेजर है, बेवरेजेस बनाता हूं, उसका मैनेजर है, कन्फेक्शंस बनाता हूं, उसका मैनेजर है। ये लोग मेरे पास हैं। ये लोग कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अपने अपना रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट लाइंस है, इनकी अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइंस है जिसको ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी, उसकी सेल्स भी। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ये नहीं ले सकते, हालांकि ये कॉस्ट रेवेन्यू दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो है ये सिर्फ मैन्युफैक्चर करके देते हैं। ये देखिए, ये इसके लिए मैन्युफैक्चर करके देता है बॉटल, ये इसको स्टोर करता है बॉटल्स को, ये बॉटल्स को भिजवाता है, ठीक है, पेप्सी बना ये उसको भिजवाता है, ठीक। ये ना समझे कोई और किस्म की बेवरेजेस हैं। ओके, रमजान भी नजदीक है, शहद पर बात करना फिर मुश्किल हो जाएगा आजकल, ठीक है। सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम, सो दीज आर बेसिकली कॉस्ट सेंटर्स। और ये जो है ये कॉस्ट प्लस रेवेन्यू व्हिच मींस प्रॉफिट सेंटर्स, और फिर ये जो है ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सेंटर ये तो हेड कर रहा है फाइनेंस के डिवीजन। फाइनेंस के डिवीजन का काम रिकॉर्डिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बजटिंग, जो भी फोरकास्टिंग करनी है, जो भी करनी है, सब कुछ ये करके दे रहा है। लेकिन ये फोरकास्टिंग तो कर रहा है, ये कह नहीं रहा जो डिमांड आती है कि मशीन चाहिए वो कहां से आती है, ये बोलेगा ना। फाइनेंस वाले को क्या पता कि मशीन मुझे और चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे एक और ब्रांच खोलनी है कि नहीं खोलनी। वो फिजिबिलिटी आपको दे सकता है। आप उसे कहें मैंने एक और ब्रांच खोली, वहां से मुझे लोग कस्टमर्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूं उधर एक वो खोल दे, ये कहेगा अच्छा ठीक है मैं आपको कैलकुलेशन करके दे दूंगा, वर्किंग मैं रिपोर्ट बना के दूंगा, ये रिपोर्ट बना के देगा। तो ये कॉस्ट को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये रेवेन्यूज को भी कंट्रोल नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर रहा।
ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चेक करें अभी, लेट्स चेक इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, सही, कॉस्ट सेंटर सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक, प्रॉफिट सेंटर्स कॉस्ट को भी रेवेन्यूज को भी, एंड वंस अगेन दीज आर कॉस्ट सेंटर्स, क्लियर? क्लियर सर जी? सर जब आप कहते हैं कि रेवेन्यूज को कंट्रोल कर रहे हैं उसका क्या मतलब है कि वो सेल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं या सेल्स को हैंडल कर रहे हैं? सेल्स को हैंडल कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, दोनों चीजें हैं उसको, ठीक है, इंपैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हैंडल भी कर रहा है उसको, ठीक, हैंडलिंग में इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा लेकिन दोनों चीजें कर रहा है। हैंडलिंग में सेल्स का जो स्टोर के अंदर बैठा हुआ है वो हैंडल कर रहा होता है ज्यादातर चीजें, सिर्फ बिल्कुल इमीडिएट रिस्पांस टू कस्टमर्स जो आएगा। जो बंदा प्राइसिंग कर रहा है वो सेल्स को इम्पैक्ट तो कर रहा है ना, लेकिन वो सेल्स को हैंडल नहीं कर रहा। जो प्राइसिंग कर रहा है वो सेल्स को इंपैक्ट तो कर रहा है, हाँ इंपैक्ट तो कर रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो प्रॉफिट सेंटर है कि नहीं, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहा। नहीं, वो कंट्रोल तो नहीं कर रहा, वो कंट्रोल नहीं कर रहा। सर तो इस तरह तो ये नीचे वाले मैनेजर से ये भी कंट्रोल कर रहे हैं सर किसको? प्रॉफिट। तो फिर तो अगर देखा जाए तो एक मिनट, फिर तो अगर देखा जाए हंसला की डेफिनेशन, इंपैक्ट तो ये भी कर रहा है, ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं करेगा तो इंपैक्ट वो नहीं करेगा। कंट्रोल को डिफाइन कैसे करते हैं? किसको? कंट्रोल को लेट्स से कि वो इसको ज्यादा या कम कर सकता है, ऑर्डर बेस। ठीक है, हाँ ऑर्डर बेस्ड ज्यादा या कम कर सकता है, कॉस्ट को ज्यादा या कम कर सकता है, वो डिसीजन इसका ले सकता है कि करना क्या है, ठीक, इस तरह का वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि फिर ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, डिसीजन ये लेता है, उसकी फिजिबिलिटी ये बताता है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, नई ब्रांच खुल सकती है या नहीं, नई मशीन आ सकती है या नहीं, नई बिल्डिंग लग सकती है, लेकिन डिसीजन इसका है। ये एक किस्म का इम्पैक्ट तो करेगा कि ये कहेगा कि नहीं पैसे ही नहीं है, नहीं हो सकता, बस तो फिर ये कहते पैसे नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकते। अकाउंट्स वाले या ये नहीं बताएंगे कि मतलब हमारे पास इतना पैसे नहीं, सिर्फ वो ये बता सकते हैं हमारे पास इतने पैसे हैं कि नहीं है, तो सर रिपोर्ट जनरेट करके दे तो सकते सर हैं, अगर- लेकिन ये डिसीजन तो इसका है ना, डिसीजन तो इसका है ना कि ये करना चाहिए या नहीं, नई मशीन लेनी है या नहीं लेनी है, वो तो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि देख रहा है कि कितने पैसे लग रहे हैं पूरी प्रोडक्शन पे, जो भी हम बनाते हैं, जिसमें हम लोग ये चिप्स भी बनाते हैं, हम बॉटल्स भी बनाते हैं, हम केक्स भी बनाते हैं, हम सब कुछ बनाते हैं, तो ये अच्छी तरीके से देख सकता है कि यार एक मशीन चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम उस सेंस में कंट्रोल कर रहे हैं कि वो डिसीजन किसका है, फिजिबिलिटी ये दे रहा है, डिसीजन इसका होगा, ठीक है, फिजिबिलिटी ये पूरी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर जाएगा उधर तक पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन डिसाइड तो ये करेगा यार कि कहां पे जाना है, किस किस एरिया में जाके आप लोग काम शुरू करते हैं। बेवरेज वाला जो बेवरेज का मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर, वो कहेगा यार हमारी डिस्ट्रीब्यूशन उधर अच्छी नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर उस तक भी चले जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि एक बड़ा ट्रक है इसकी बजाय 2 छोटे ट्रक भेजो, और इस तरह की चीज़ें डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं डिसाइड कर सकेगा ज़्यादा कि क्या हमें ये काम करना चाहिए, तो वो उधर है, ठीक, तो वो सेल्स को वो कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर रहा, ये कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। ओके, ये डिस्कशन पूरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन वेयर वी विल टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट सबको याद है? ऑल ऑफ यू रिमेंबर कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट? क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस variable cost will give you contribution margin, then fixed cost. minus fixed cost would give you Net net income. So this is your contribution margin. ठीक है? Contribution margin format income statement जरूर आपको आनी चाहिए। पिछले कोर्स में भी बहुत हमने पढ़ी थी, इस कोर्स में भी बहुत पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे, इसके बाद भी पढ़ेंगे। Okay, so prepare a segmented income statement using the contribution margin format. Segmented, हर सेगमेंट की अलग इनकम स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं फिर वही बात पे, अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेशन। अब याद है ये क्या चीज होती थी, ये क्या चीजें हैं, ये पढ़ा है कि नहीं, सिर्फ आपने नाम सुना? तो सर फिर तो अगर इस यूनिवर्सिटी में भी सर बीपीओ और पहले सेगमेंट होगा, Exactly. अकाउंटिंग का, Exactly. तो सर ये बहुत वो मुश्किल हो सिर्फ, जाएगा। लेकिन फारूक अगर ये होगा तो क्या फिर आपको अंदाजा है कि क्या हो जाएगा? अगर ये हो गया ना तो फिर सबको पता चल जाएगा कि कौन सा सेगमेंट ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है, कौन सा सेगमेंट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है, कौन सा जो है वो होना चाहिए, कौन से को हटा सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस।
किसको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, किसको कम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, किसको जरूरत है कि पुश करें क्योंकि ये पैसे नहीं कमा के दे रहा आपको, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस आप ले सकते हैं। तो जितना आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाएंगे उतना डिसीजन मेकिंग अच्छी होती जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि यार बीएस पैसे कमा के भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, बीबीए लगता तो बीबीए बहुत बड़ा है, लेकिन क्या वाकई बीबीए फीसिबल है आपका क्या नहीं, ठीक है। वो कॉस्ट कितनी ले रहा है, वो प्रॉफिट कितने दे रहा है आपको, वो तो भी पॉसिबल है जब ये सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट्स हो सकती है, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद आप नहीं बता सकते। उसके बाद तो बस आपको ये लग रहा है कि बीबीए में वो 400 लोग हैं, बीबीए सबसे अच्छा, दैट्स नॉट द रीजन, ठीक है। ये देखें कंट्रीब्यूशन कुछ करके दे रहे हैं नहीं, ओवरऑल रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका। ओके, ये भी हो गया। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। ये किसी को याद है? ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट, कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दो किस्म की पड़ी थी, ट्रेसेबल, कॉमन। और कहां पड़ी थी ये किसी को याद है? डिसीजन मेकिंग में पड़ी थी। ये टॉपिक एडिंग ड्रॉपिंग अ सेगमेंट, ये याद है? यस सर। उसके अंदर वो एक सेगमेंट जो है वो पिछले कितने महीनों से लॉस में है, आप कहते बस सर ड्रॉप कर दें इसको, हम कहते नहीं रुकें पहले इसको चेक करें। जब चेक कर देते तो अगर उसको ड्रॉप करें तो उसका नुकसान ज्यादा है, अगर वो रहे तो 10 रुपीज लॉस कर रहा है, लेकिन वो नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को 50 रुपीज लॉस हो जाएगा, याद आएगा? वो किस वजह से था? व्हाट वाज द रीजन फॉर फिक्स्ड कॉस्ट? कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। तो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट की भी डेफिनेशन क्या हुई, कुछ बना सकते हैं? वैसे भी अभी पढ़ेंगे सारे सेगमेंट्स पे जो आ रहे हैं, जो सब सेगमेंट्स इनकट कर रहे हो एक ही फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक है एक और वो सबसे divide- सेगमेंट की नहीं है। अगर सेगमेंट की है तो फिर तो ट्रेसेबल होगी, और अगर सेगमेंट की नहीं है तो वो कॉमन होगी। जिस तरह हम कहते हैं सैलरी ऑफ द डायरेक्टर, सैलरी ऑफ द डायरेक्टर वो किसी भी सेगमेंट की नहीं है बॉस, लेकिन कोऑर्डिनेटर की सैलरी, कोऑर्डिनेटर ऑफ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसकी सैलरी तो वो इस सेगमेंट की सैलरी, इस सेगमेंट का एक्सपेंस है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है लेकिन सेगमेंट है। ओके, इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम उस वक्त से सेगमेंट बातें कर रहे हैं। व्हाट इज अ सेगमेंट? ये सेगमेंट होता है, सेगमेंट इज एनी पार्ट और एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन about which a manager seeks cost, revenue or profit. Cost, revenue, profit. किसी भी पार्ट या एक्टिविटी जिसके बारे में आप कॉस्ट डेटा देखना चाह रहे हैं, आप प्रॉफिट डेटा देखना चाह रहे हैं और आप रेवेन्यू देखना चाह रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कि इट्स अ सेगमेंट और इट्स अ एक्टिविटी। नाउ देयर कैन बी मेनी डिफरेंट सेगमेंट्स। स्टोर एक सेगमेंट है, एक पूरी टेरिटरी की सेगमेंट हो सकती है कि आप कहेंगे मुझे ये बताओ कि पूरा साउथ रीजन कितने पैसे कमा के दे रहा है, कितनी सेल्स कर रहा है या कितनी कॉस्ट है उसकी। सो अ सेल्स टेरिटरी, अ सर्विस सेंटर, कैंटीन पे मेरा कितना खर्चा होगा, या सिक्योरिटी गार्ड है मेरे पास, तो सिक्योरिटी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसके ऊपर कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो ये सब सेगमेंट्स हैं। सो सेगमेंट और एक्टिविटी कैन बी एनी पार्ट अबाउट व्हिच यू वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट, द रेवेन्यू और द प्रॉफिट। क्लियर है? जाएंगे आगे जाएं। Now this is an example of segment. अब ये segment are based on geographic locations. Geographic हमने डिवाइड किया है, हमने उसको डिवाइड कर दिया है, लेकिन geographically डिवाइड किया है। For example, this is my company Superior Foods Corporation, और मैंने कहा ये पूरी कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या प्रोडक्ट्स दे रही है। ईस्ट का रीजन अलग, वेस्ट अलग, मिड वेस्ट अलग, साउथ अलग। इसको अगर फर्दर में डिवाइड करूं, लेट्स से वेस्ट, इसके अंदर we have 4 different states, और अगर इन स्टेट्स को डिवाइड करूं, so I can say कि कैलिफोर्निया में फिर different cities, और फिर इसको फर्दर डिवाइड करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस सिटी का कौन सा, कैलिफोर्निया में कौन सी सिटी किसी का Our information about US is not good. ज़्यादा सारा जाते हैं, लेकिन how many of you have been to US? How many of you have been to US? None, sir. सर लॉस एंजलिस है ना, Los Angeles है, okay, LA, सैन फ्रांसिस्को भी है, San Francisco भी है, Santiago. और कौन से? Santiago. San Diego भी है। सैन मैक्सिको भी है सर।
अपने से लगे सर। कौन सा है इब्राहिम? सेंट इब्राहिम भी है। Okay, so these are different cities. So once again segments. और अगर इस सिटी के अंदर मैं इस सिटी को डिवाइड कर दूं इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स, अपर, हाँ, डाउनटाउन उनके तो इस तरह होते हैं ना, डाउनटाउन हो गया और सबर्ब हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, क्या अपस्टेट, डाउनटाउन, गरीब लोग मिडिल क्लास। हाँ, फिर वो हमसे कहते हैं कि वो रीजन है। It's okay. I missed it. Zai da ora solo stare. Okay. Okay. So let's move on. So these are different segments geographical. यानी अगर geographical region के मुताबिक segmentation करूँ तो इस तरह की segmentation है. We can do this same segmentation for the same company, but based on customer channel. कि कौन कौन से customers हैं मेरे पास. So Superior Foods Corporation, I have convenience stores, छोटे-छोटे stores. Supermarket chains, बड़ी-बड़ी market chains. Wholesale distributions, जो सिर्फ wholesalers को दे रहे होंगे. Drug stores. अब मैंने दोबारा segmentation की of the same organization, लेकिन मैंने की on the basis of customer channel. So segmentation can be done in any way you want to do it. जिस तरह मैंने कहा ना कि आप क्लास को segment बना रहे हैं, girls, boys, CGPA wise, age wise, weight wise, तो ये सारे different segments हैं जो मैं बना सकता हूँ, ठीक है? Okay, so now in supermarket chains we have supermarket A, B, C, D, whatever. So these are based on customer channels. Segments clear हो गए? Yes sir. अब इसकी Sir, working start करते हैं. जी. Break. Okay, pause कर दें. Take a 2 minutes. Sir, start. Okay, so let's start. Now we need to talk about segmented income statements. Segmented income statement से पहले वो जो कुछ definitions हैं उसको जरा सीख लेंगे वो है क्या चीज़. There are two keys to building segmented income statements. दो चीजें जरूरी हैं. Contribution format, which we just discussed earlier, should be used because it separates fixed from variable cost. We know that variable अलग जाएगी, fixed अलग जाएगी. ये अच्छी होती है decision making के purposes के लिए. So segmented income statement is good. It enables the calculation of contribution margin. This is what we've seen. ठीक है? तो segmented income statement is the answer. ये हमने पिछले कोर्स में भी कहा था कि for managerial decision making, segmented income statement से अच्छी information और कोई नहीं देता. आपकी जो बाकी इनकम स्टेटमेंट है, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन फिक्स वेरिएबल को अलग नहीं करके देता, जिसकी वजह से आप बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले सकते. यहाँ पर आपको डिसीजन आराम से ले सकते हैं. अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारे पास दो मसले आ जाते हैं. सॉरी, एक मसला आता है कि ये कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ट्रेसेबल है या कॉमन है. ओके, सो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉमन फिक्स कॉस्ट. इसको अलग करना है. क्यों अलग करना है? टू इनेबल द कैलकुलेशन ऑफ अ सेगमेंट मार्जिन. क्योंकि याद रखें, दिस कॉमन फिक्स कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ अ सेगमेंट. ये तो सब के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसका मतलब ये है कि इसका इस सेगमेंट से ताल्लुक नहीं है, तो इसको इसमें से माइनस नहीं करना. ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सेगमेंट का मार्जिन कितना है. बट रिमेंबर, व्हेन यू कंसोलिडेट ऑल द सेगमेंट्स एंड यू वांट टू सी द इनकम ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, देन यू नीड टू सबट्रैक्ट द कॉमन फिक्स कॉस्ट. फिर उसको उधर माइनस करना पड़ेगा. इसको कहीं ना कहीं तो डालना है. दिस इज द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये किसी सेगमेंट में नहीं आएगी तो ये होल वाले में आ जाएगी, तो टोटल वाले कॉलम में आ जाएगी. ठीक है, गॉट द आइडिया? स्टार्ट करें इसको. ये जो चीजें बाकी हैं इसको स्टार्ट करें. नाउ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट. अब ट्रेसेबल को डेफिनेशन क्या है कि ये ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट होती क्या है? हमने कहा ये किसी सेगमेंट की कॉस्ट है. तो सेगमेंट की कॉस्ट, हाउ वुड यू डिसाइड कि इट्स अ सेगमेंट कॉस्ट? Traceable fixed costs arise because of the existence of a particular segment. So if the segment is there, the cost will be there. If the segment is not there, the cost will not be there. ये तरीका है, बस आसान तरीका, आसान डेफिनेशन. अगर इस सेगमेंट को हटा दूं तो ये कॉस्ट हट जाएगी. अगर हट जाएगी, इट्स अ ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट. सिंपल. बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आप कहते हैं इस सेगमेंट को हटा दो, हटा दें. कोऑर्डिनेटर बीएस एंड फाइनेंस, इसकी जो सैलरी आप कोऑर्डिनेटर को दे रहे हैं, अब अगर सेगमेंट ही नहीं होगा तो इसकी सैलरी आप देंगे कोऑर्डिनेटर को? नहीं देंगे. सो इट्स अ ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट. अच्छा, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर इस सेगमेंट को हटा दो तो क्या आपका रेंट ऑफ द बिल्डिंग फॉर आर्ट साइंसेस ये काम हो जाएगा? इट्स अ कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट. इट्स अ कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट. ये काम नहीं होगा.
अगर ये ट्रेसेबल होता तब जब आप कहते हैं कि एक बिल्डिंग अलग है, एक बिल्डिंग अलग है, एक बिल्डिंग अलग है, तो अगर बीएस को खत्म करूं तो बीएस की बिल्डिंग नहीं चाहिए रेंट पे, बस वापस कर दो, रेंट नहीं दूंगा, तो फिर इट विल बिकम अ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। सो रिमेंबर, रटा नहीं माना ट्रेसेबल और कॉमन का। डेफिनेशन देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि नेचर क्या है। डज द नेचर सजेस्ट इट वैनिशेस व्हेन द सेगमेंट इज रिमूव्ड, तो फिर ट्रेसेबल है। इफ इट एग्जिस्ट इवन इफ द सेगमेंट इज रिमूव्ड, तो फिर वो कॉमन। समझ आ गई जी? सर अभी सर ये मतलब आपने एक प्रोग्राम सुना था ना सर, अकाउंटिंग का, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी थी मतलब 5 कमरों में यूज हो रही थी, 4 में हो रही है, सर ये भी तो बात है। उसामा, हमने कहा कि ये जो कॉस्ट हम बात कर रहे हैं ये क्या चीज है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं? ओके, लेट्स मूव ऑन। So this is common fixed cost arises because of the overall operation of the company की वजह से, and would not disappear if any particular segment were eliminated। अगर सेगमेंट को हटा भी दें तो ये कॉस्ट नहीं घटेगी। सही है? एग्जांपल भी दी हुई है उन्होंने, जो हमने थोड़ी देर पहले कही कि कंपनी के प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो रहेगी, चाहे आप सेगमेंट हटा दें चाहे आप सेगमेंट रखें। सो दैट्स अ कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। अब एक और बात याद रखें, it is important to realize that the traceable fixed cost of one segment may be a common fixed cost of another segment। कॉस्ट एक ही है, अगर मैं उसको एक एंगल से देखूं तो वो किसी एक सेगमेंट के लिए उसकी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, लेकिन अगर उसको मैं किसी दूसरे एंगल से देखूं, एक और सेगमेंटेशन करूं, तो वो कॉमन बन जाएगी। यानी ट्रेसेबल और कॉमन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जो आपको एग्जाम में गिवन होगा या अगर रियल लाइफ में आप हैं तो रियल लाइफ में जो सिचुएशन देखेंगे उसमें देखेंगे। क्राइटेरिया सेम है, सेगमेंट हटाओ कॉस्ट खत्म होती है तो ट्रेसेबल, सेगमेंट हटाओ कॉस्ट खत्म नहीं होती है तो कॉमन। बस दिस इज द क्राइटेरिया। गॉट द क्राइटेरिया क्लास? ओके, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल इसकी क्या है? द लैंडिंग फी पेड टू लैंड एन एयरप्लेन एट एन एयरपोर्ट इज ट्रेसेबल टू द पर्टिकुलर फ्लाइट। पीआईए की फ्लाइट जा रही है दुबई, ठीक है, दुबई फ्लाइट जा रही है, दुबई के एयरपोर्ट पे जब लैंड करती है तो वहां पे एयरपोर्ट वालों को फी देनी पड़ती है। सही है? आपके पास डिफरेंट फ्लाइट्स है ना, दुबई, लेट्स से मैक्सिको, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ब्ला ब्ला ब्ला, हर जगह पे आप जाएंगे तो वहां पे जाके आपको ये लैंडिंग फी देनी। ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, बाय द वे इसको वो लोग भी सेगमेंट ही बोलते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अब अगर आपसे कहें कि आप दुबई का सेगमेंट बंद कर दें, दुबई का सेगमेंट मैंने बंद कर दिया, तो फिर क्या दुबई के एयरपोर्ट को मैं लैंडिंग फी दूंगा? Would I pay landing fee to Dubai airport? नहीं ना। तो इसका मतलब ये लैंडिंग फी क्या होगी? ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। इट्स अ फिक्स कॉस्ट बट इट्स अ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। ट्रेस कर सकते हैं, ये इसकी कॉस्ट है, दुबई का सेगमेंट आपने बंद कर दिया, दुबई की लैंडिंग फी बंद। क्लियर? अब दूसरी चीज, अब लेट्स से मैं एक और तरीके से सेगमेंटेशन करता हूं। मैं कहता हूं मेरी फ्लाइट जाती है दुबई, सेगमेंट्स बना ले जो मेरे कस्टमर वाइज या टिकट वाइज, इकोनॉमी क्लास अलग सेगमेंट, फर्स्ट क्लास अलग सेगमेंट और बिजनेस क्लास अलग सेगमेंट। ठीक है? अभी मैं जब दुबई ले जाऊंगा, लैंड करूंगा, तो मैं दुबई एयरपोर्ट को फी दूंगा ना, दुबई एयरपोर्ट को लैंडिंग फी दूंगा। ओके, लैंडिंग फी दूंगा। अब मेरे 3 सेगमेंट्स कौन से हैं? कस्टमर वाइज, इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट। मैं कहता हूं यार सारे लोग दुबई जाते हैं, वर्किंग क्लास है, इकोनॉमी ज्यादा है, फर्स्ट क्लास कोई नहीं जाता, फर्स्ट क्लास को हटा दें। ठीक, फर्स्ट क्लास सेगमेंट को मैंने रिमूव कर दिया। बाय रिमूविंग दिस फर्स्ट क्लास सेगमेंट, क्या दुबई की एयरपोर्ट को जो मैं लैंडिंग फी देता हूं, क्या वो खत्म हो गई या वो कम हो गई? इट हैज नथिंग टू डू विद इट। तो इसका मतलब ये कॉस्ट इन सेगमेंट्स के लिए कॉमन फिक्स कॉस्ट होगी। देखिए, आप कॉस्ट वही सेम है, लैंडिंग फी, लेकिन लैंडिंग फी जब मैं सेगमेंट मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशंस, तो वो ट्रेसेबल था। सर अगर हम फिक्स कॉस्ट को हटा लें और सर इकोनॉमी क्लास को बढ़ा करके थोड़ा सा ना सर, तो इकोनॉमी क्लास को तो सर ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं, तो सर प्रॉफिट तो हमारे सर ज्यादा हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि वो कॉस्ट किधर जाएगी, क्या वो कॉस्ट सेगमेंट में जाएगी या ऑर्गेनाइजेशन टोटल में जाएगी, सिर्फ ये बात है। रेवेन्यू की हम बात ही नहीं कर रहे, हम इस फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं।
मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि 3 सेगमेंट्स हैं 1 2 3 जो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है वो सेगमेंट के इनकम में आ जाएगी, सेगमेंट की इनकम से माइनस हो। लेकिन जो कॉमन फिक्स कॉस्ट है वो यहां पर आप लिखेंगे टोटल, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल इनकम आ रही है उसमें से माइनस। ये फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं, माइनस होगी, इट्स अ कॉस्ट, वो कॉस्ट कहीं पे जाएगी भी नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होगी, सब कुछ होगा। बट द थिंग इज यू नीड टू डिसाइड कि वेदर इट्स अ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट और इट्स अ कॉमन फिक्स कॉस्ट। तो वो आपको ये बता रहा है कि किसी एक सिचुएशन में कोई एक कॉस्ट वुड बी अ ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, देन इन द अदर सिचुएशन द सेम कॉस्ट वुड बिकम अ कॉमन फिक्स। ये भी तो रटा नहीं मारना। ये फर्स्ट क्लास वाला ट्रेसेबल। अब देखें ये जो कॉस्ट अभी हमने बताई लैंडिंग फी, अब ये लैंडिंग फी की जो कॉस्ट थी ये पहले केस में जहां पे आप कह रहे थे कि अलग अलग सेगमेंट है, यानी दुबई का एक सेगमेंट, अबू धाबी का दूसरा सेगमेंट, रियाद का तीसरा सेगमेंट, मदीना का चौथा सेगमेंट, हर एक अलग अलग फ्लाइट है। तो अगर आप दुबई नहीं चाहते तो दुबई की लैंडिंग फी नहीं होती, तो वहां पे ट्रेसेबल बन गया। लेकिन अब अगर मैं दुबई जा रहा हूं तो फिर ये लैंडिंग फी देनी पड़ेगी, तो ये ट्रेसेबल है इसका। लेकिन अब अगर मैं सेगमेंट बना दूं मेरे कस्टमर वाइज, यानी इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास, बिजनेस, इस केस में ये जो लैंडिंग फी है दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम अ कॉमन फिक्स। क्लियर? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास? ओके। अच्छा, सेगमेंट मार्जिन। अब जिस तरह डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो हर सेगमेंट का ये जो इनकम है तो हर सेगमेंट की इनकम भी फाइंड आउट करनी होगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, द सेगमेंट मार्जिन which is computed by subtracting the traceable fixed cost of a segment from its contribution margin is the best gauge of the long run profitability of a segment. अगर देखना है कि ये सेगमेंट पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, तो आपने क्या करना है, उस सेगमेंट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट कर लेनी, जैसे 100, और जो भी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट तो माइनस करेंगे लेकिन ट्रेसेबल से ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट यहां से माइनस कर देंगे, लेट्स से 50, सो 50 विल बी योर सेगमेंट मार्जिन। बस इस सेगमेंट का मार्जिन आ गया। अब तो वही का मार्जिन 50 है, लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड में मदीना की सेगमेंट, इसका मार्जिन 60 है। थर्ड न्यूयॉर्क का मार्जिन 80 है। तो आप शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टोटल मार्जिन मेरे पास आना चाहिए 50 प्लस 60 प्लस 80, 50 प्लस 60 प्लस 80 which equals 190। लेकिन याद रखें अभी यहां से आपने कॉमन फिक्स कॉस्ट को भी माइनस नहीं किया, उसको भी माइनस करना है, और अगर वो माइनस कर दूं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की नेट इनकम कितनी आ गई, 100। तो दिस इज द कैलकुलेशन व्हिच यू नीड। सेगमेंट में से सेगमेंट का वेरिएबल कॉस्ट, सेगमेंट का ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, लेकिन कॉमन फिक्स कॉस्ट सेगमेंट का नहीं होगा, कॉमन फिक्स कॉस्ट वुड बी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। गॉट द आइडिया? क्लियर? क्लियर क्लास? जाएं आगे जाएं? ओके, सो फिक्स कॉस्ट कैन बी ट्रेसेबल, कैन बी कॉमन, ये बात हम सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक। नाउ डोंट एलोकेट कॉमन कॉस्ट टू सेगमेंट, ये आपको मैंने पहले भी कह दिया कि जो कॉमन कॉस्ट है वो सेगमेंट्स को नहीं जाएगी। कैन यू पॉज द वीडियो?